औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून है और जुमेरात का दिन है, साल 2021 है। तो हम 5वीं जमात की किताब उर्दू का सबक पढ़ रहे हैं। तो हमने ये सबक पढ़ा है बाबा गुलाम शाह बादशाह, इसका कुछ हिस्सा। तो इसके आगे हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 41 निकालें। सफ़ा नंबर 41, यह 41 41 तो 41 पर आपका आज का बाकी सबक जो हम आगे पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि शादरा शरीफ के मतलब थोड़ा हमने पढ़ा इससे, और इस और वाक़फ़ियत हम हासिल करेंगे। यहाँ है, यहाँ ध्यान रखो आप, ज़ियारत शरीफ का सब्ज़, ज़ियारत शरीफ का सब्ज़ रंग का गुंबद अंगूठी के निकी निकी तरह चमकता हुआ नजर आता है। रंग का गुंबद अंगूठी के निकी निकी तरह चमकता हुआ नजर आता है। ज़ियारत के आसपास 250 कनाल अराजी है। ज़ियारत के आसपास 250 कनाल अराजी है। रियासती महकमा सेहत ने इस इलाके को सयाहों और ज़ायरीन के लिए बाइस कशिश बना दिया। रियासती महकमा सेहत ने इस इलाके को सयाहों और ज़ायरीन के लिए बाइस कशिश बना दिया है। ज़ियारत के करीब जवार में ज़ायरीन के लिए लंगर खाना, मेहमान खाना और चंद इमारतें तामीर की गई है। एक छोटा सा बाजार भी है। बाबा गुलाम शाह बादशाह ने 1767 ईस्वी, ये जो एन है इसका मतलब ईस्वी, ता 1808 ईस्वी का उर्सा शादरा शरीफ में इबादत व रियाजत। दोबारा पढ़ेंगे। बाबा गुलाम शाह बादशाह ने 1767 ता 1808 ईस्वी का उर्सा शादरा शरीफ में इबादत व रियाजत। आगे चलेंगे एक और बार। रियाजत में गुजारा। आपने 1808 ईस्वी में इंतकाल फरमाया। आपने मुतअद्दिद करामातें ज़ाहिर की। इम्तियाज़ इम्तियाज़ मज़हब मिलत। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर दनूर राजौरी में एक यूनिवर्सिटी कायम की गई है, जहाँ जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ साइंसी और तकनीकी मज़ामीन की तालीम दी जा रही है। जहाँ जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ साइंसी और तकनीकी मज़ामीन की तालीम दी जा रही है। तो प्यारे बच्चों, ये आज का आपका सबक है। तो यहाँ ये नीचे ये आप देख रहे हैं, ये शक्ल है। तो यूनिवर्सिटी बनाई गई है, बाबा गुलाम शाह बादशाह की यूनिवर्सिटी। यहाँ तो बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है
اور مشہور یونیورسٹی یہاں تعمیر کی گئی ہے بابا جی غلام شاہ کے نام پر. تو یہاں کچھ مشکل لفظ ہمیں آتے ہیں. ایک لفظ ہے گنبد. جو گنبد ہے تو یہ گنبد اوپر سے یہاں جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں اس طرح ہوتا ہے. مسجد یا کسی مندر یا کسی کے اوپر ہی اس طرح بنایا گیا ہے. اوپر اونچا حصہ بنایا جاتا ہے جو چمکتا ہے، اس کو بولتے ہیں گنبد. یعنی یہاں لکھیں گے عبادت گاہ پر چمکنے والا ستارہ، جو ایک سٹار جیسا بناتے ہیں اوپر کسی عبادت مندر پر، مسجد پر یا کسی عبادت گاہ پر، تو اوپر سے بنایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گنبد. تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، چمکانے کے لیے، تو تاکہ یہ پیشان ہو گئے، یہ مکان نہیں ہے، یہ عبادت گاہ ہے. گنبد اسی لیے بن جاتا ہے تاکہ یہ پیشان ہو جائے یا مسجد ہے یا مندر ہے یا کچھ اور چیز ہے. مسجد کے سیدھا ہم چھت بناتے ہیں، لیکن گنبد جو ہوتا ہے وہ عبادت گاہ کے اوپر بنتا ہے کہ یہ دور سے نظر آئے ہاں یہ مسجد ہے یا مندر ہے کچھ اور، یہ عبادت گاہ ہے کسی دوسرے مذہب کی. تو اسی طرح عرض ہو گئے زمین. الف رے این سے نہیں ہے عرض. عرض کو عرض کرنا کہ جیسے ہیڈ ماسٹر ہم عرض کرتے ہیں، عرض داشت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ عرض نہیں ہے. الف سے عرض ہے، وہ این سے عرض ہوتا ہے. الف رے زود عرض زمین. عرض کا مطلب ہے ارضیات، ماہر ارضیات یعنی زمینی، یہ زمین کے متعلق ہو. عرض ہو گئے زمین. اسی طرح قریب، قرب و جوار. قرب و جوار دور اور نزدیک. قرب ہو گیا قرب ہو گیا نزدیک اور جوار گیا دور. اس طرح قرب نزدیک اور دور یا دور اور نزدیک. اس طرح لنگر کھانا ہوتا ہے. ایک لفظ ہے لنگر کھانا. لنگر کھانا ہوتا ہے کھانے پکانے کی جگہ. لنگر کھانا ایسا جیسے کچن گھر میں ہوتا ہے، اسی طرح کہیں ہم جاتے ہیں تو وہاں لوگ آتے ہیں بڑی تعداد میں، تو ان کے لیے الگ کھانے پکانے کا انتظام ہوتا ہے. کچن میں ہم 5 10 20 آدمی ہوتے ہیں، لیکن لنگر کھانا جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں زیادہ پکایا جاتا ہے بڑے تعداد میں. اسی کو لنگر کھانا کہتے ہیں، ایک کھانا پکانے کی بڑی جگہ. تو اسی طرح عرصہ گیا وقت، زمانہ. عرصہ وقت زمانہ. کرامت روحانی، اس کا معنی ہے روحانی باتیں. کرامات کرامات جو بزرگ ہوتے ہیں تو وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو عام انسان نہیں بتا سکتا. بزرگ لوگ ایسی باتیں میں جو ہم نے تو اس کو روحانی باتیں کہتے ہیں. بلا امتیاز، بغیر کسی فرق کے. بلا امتیاز کا مطلب بغیر کسی فرق کے، امتیاز کے. امتیاز کا مطلب فرق، اونچ نیچ کے. ملت ہو گئے قوم. ملت ایک خاص قوم ہوتا ہے ملت. جدید تقاضے، نئی ضرورتیں. جدید کا مطلب ہے نیا. قدیم کا مطلب پرانا، جدید کا مطلب نیا. جدید تقاضے نئی ضرورتیں. جدید تقاضے کا مطلب ہے نئی ضرورتیں. تو یہ مشکل لفظ اس میں آتے ہیں کچھ. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ لفظ. تو اسی طرح ہم اور سبق دوبارہ اس کی طرف غور کریں گے جو سبق ہم نے آج پڑھا. یہاں ہے زیارت شریف کا سبز گنبد. سبز رنگ کا گنبد انگوٹھی کے نگینے طرح چمکتا ہے. جو زراعت بابا غلام شاہ بادشاہ کی زیارت ہے تو اس کو اوپر گنبد بنایا گیا ہے. تو یہ کیسے چمکتا ہے؟ جیسے انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے. انگوٹھی میں جیسے انگوٹھی ہم انگلی میں جو انگوٹھی پہنتے ہیں اس طرح، تو اس میں وہ اوپر سے چمکتا ہے. اس کو کشمیر میں بولتے ہیں کران. واج اس ووج لاگان سے ات پہ کران، تات سے ونان نگینہ. تو انگوٹھی کے انگوٹھی کے نگینے ایسی طرح چمکا ہے جیسے یہ انگوٹھی چمکتے ہیں ہاتھ میں. ایسے اس کا گنبد ہے. زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی ہے. تو جو بابا غلام شاہ بادشاہ کی یہ زیارت ہے وہاں بہت بڑا ایریا ہے. تو اس ایریا تقریباً 250 کنال زمین 250 کنال زمین اس زیارت کے نیچے ہے. تو معمولی بات نہیں ہے، تو بہت بڑا ایریا ہے. تو جہاں اس کے آس پاس 250 کنال زمین ہے. ریاستی محکمہ سیاست نے اس علاقے کو سیاح اور زائرین کے لیے باعث کشش بنا دیا. تو جو ریاستی محکمہ ہماری ریاست جموں کشمیر کا محکمہ ہے سیاحت کا، تو ٹورسٹ وہاں آتے ہیں، سیاح آتے ہیں ادھر گھومنے کے لیے، ادھر دیکھنے کے لیے. تو ان کے لیے انہوں نے اس زمین کو بہت سیف رکھا ہے
अच्छी तरह इसको संभाल कर रखा है। तो सारे अच्छी तरह वहाँ जाते हैं और वहाँ बैठते हैं, खुली जगह है बहुत, तो वो बाईस कशिश है, तो वो खुश होते हैं जब वो इसको देखते हैं वहाँ जाने वाले। रियासत के करीब जौर में ज़ायरीन के लिए लंगर खाना है, तो इसके नज़दीक एक पास ही ज़ियारत के पास ही ज़ायरीन के लिए एक लंगर खाना है, खाने पकाने की जगह है, मेहमान खाना और दूसरी जगह है जहाँ मेहमान बैठते हैं, रात को सोते हैं, बैठते हैं, तो मेहमान खाना होता है। और चंद इमारतें, और इसके आसपास कुछ इमारतें बनाई तामीर का मतलब बनाई गई हैं, तामीर की गई हैं। एक छोटा सा बाज़ार भी है, तो यहाँ छोटा सा बाज़ार भी है। बाबा गुलाम शाह बादशाह ने 1767 ईस्वी तक 1808 का उर्सा शादरा शरीफ में इबादत रियाजत। तो यहाँ जो बाबा गुलाम शाह बादशाह थे उसने 1767 से 1868 का उर्सा शादरा शरीफ में वो यहाँ बैठा। तो वो उसने ये गुजारा तकरीबन 40 साल इसमें गुजारे। आपने 1808 में इंतकाल फरमाया, तो 1008 में आपने यहाँ से इंतकाल फरमाया, आप इस दुनिया से रुखसत हो गई। इंतकाल का मतलब है रुखसत हो गई, मरना। आपने मुतअद्दिद करामातें ज़ाहिर की, तो इनकी करामातें और अच्छी अच्छी बातें, रूहानी बातें जो आम इंसान नहीं बना सकते, इनकी करामातें, अच्छी बातें बताई लोगों को, नसीहत की बातें। बिला इम्तियाज़ मज़हब मिलत, दूर दूर से लोग यहाँ थे। यहाँ हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं इस ज़ियारत पर घूमने के लिए, देखने के लिए, वहाँ इबादत के लिए। इसी तरह बिला इम्तियाज़, यानी कोई फ़र्क नहीं है, हर मज़हब के लोग वहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। और रूहानी फैज़ करते हैं, फैज़ का मतलब है फ़ायदा, फैज़ का मतलब है फ़ायदा, और दिल को सुकून हासिल करते हैं, और जो बुराइयाँ यहाँ छोड़ते हैं, अच्छाई की नेक काम की तरफ दौड़ते हैं, रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर दुनू राजौरी में एक यूनिवर्सिटी कायम की गई, वहाँ इसी जगह इसके नाम पर इसी इलाके में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जहाँ जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ साइंसी और टेक्निक मज़ाहिब की तालीम दी जा रही है। यहाँ नए तकाज़ों के मतलब नई ज़रूरतों के मुताबिक साइंसी और टेक्निकल तालीम, इंजीनियरिंग तालीम, दूसरी हुनर सिखाए जाते हैं। टेक्निक के मतलब है हुनर, अच्छे अच्छे हुनर सिखाए जाते हैं, जैसे रोज़गार के ज़रिए हासिल हो सके, तो ऐसी तालीम यहाँ जो दी जा रही है। तो यूनिवर्सिटी एक तो प्राइमरी होता है, प्राइमरी 5वीं तक होता है, इसी तरह मिडल होता है 8वीं तक, इस तरह हाई होता है 10वीं तक, और हायर सेकेंडरी 12वीं तक कॉलेज होता है। तो वहाँ कॉलेज में ग्रेजुएशन होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी जो होते हैं यहाँ आपने पढ़ा एक लफ्ज़ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी आपने ऊंची ऊंची डिग्रियां करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी जो बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, MA, MSc, MCom, जो हर अलग अलग सब्जेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट में अपनी अपनी डिग्री होती है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में होते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा इदारा है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी कायम की गई है। तो इस तरह आपका ये सबक है। आप देखते हैं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह कितने अजीम बुज़ुर्ग थे, और इसके नाम को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी का भी नाम इसी के नाम पर रखा। तो यह बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी है। तो इसलिए आप भी अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। तो ये सबक आज का आपको यहाँ तक इख्तिताम हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम नया सबक पढ़ेंगे।